We have all heard that options trading is a great way to make money. On the flip side, not many will highlight the various strategies and risks that are involved. Today, our expert research analyst will guide you through options trading, the basics of derivatives and options, a few strategies on how an investor like you could gain the maximum. After this presentation, we'll have an interactive Q&A session where our research desk will answer your derivatives and options related queries. Before I formally introduce our expert research team, I would like to mention a bit about our company, BP Wealth. We are a 70-year-old organization focusing on creating wealth for investors through advisory research, PMS, and stockbroking services. Even in times like these, our expert research desk has generated decent returns for our investors. On the webinar today, we have Hansraj Modi, Head Technical and Derivatives at BP Wealth. Hansraj, would you like to say hi to everyone? Hello everyone, good morning. He holds CMT certification from New York and is a master's in finance with over 14 years of experience in the field of technical and derivatives. He has been a part of our BP Wealth family since the past 8 years. Akash Chauhan, derivatives analyst at BP Wealth. Akash has done his MBA in finance from NMIAS and has over 5 years of experience in derivatives. I would request Hansraj to commence this webinar, please. Sure, thank you Anush. Good morning everyone. I hope everyone is safe and healthy. So, everyone is witnessing such kind of scenarios in once in their lifetime. Talking about this series, I'll just give a brief intro about this investor profit series, why we started this. As everyone right now also have a lot of time, so we thought whatever we have done over the past few years, we just thought कि हम वो आप लोगों के साथ share करें हमारा जो भी finding है. So it is not going to restrict to a particular topic कि सिर्फ technical analysis है, fundamental analysis है और options analysis है. It is going to be a blend of all of them और ऐसे ही हमारे upcoming webinars में अलग-अलग topics आपको मिलेंगे on various methods. Talking about our previous webinar जो हमने लिया वो technicals पे लिया था, then followed by our fundamental view and take on जो कोरोना वायरस पे कोविड पे हम देख रहे हैं, तो how it is impacting all the industries and what is impact going to be, उस पे था. थर्ड ही हमने ऑप्शन का जो सीरीज स्टार्ट करा है. So for today's series, it is restricted to basic use of derivatives कि एक लेमन को भी डेरिवेटिव का मतलब थोड़ा समझ में आए, और rather than making it theoretical, we have tried to keep it practical. जैसे समझ के कोई भी आज derivatives के अंदर कैसे start कर सकता है. So I'll start with why we have selected derivatives. डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे अनसर्टेन टाइम में बहुत रादर एक ऐसा ही यही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर इतने सारे एडवांटेजेस हैं जो ऐसे ऑनगोइंग मार्केट वोलेटिलिटी को हैंडल भी कर सकता है, एंड डिस्पाइट दैट यू कैन गेन आउट ऑफ इट. सेकेंडली, जैसे अभी अपन कोई भी अदर मार्केट सेगमेंट की बात करें, वेदर इट इज कैश और इन दोस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू हेज आवर रिस्क. अपने रिस्क को मिनिमाइज करके कल एक स्टॉक कोई भी है एकदम से गैप डाउन होता है एडवर्स डायरेक्शन में, जिस पोजीशन में मेरा ऑलरेडी होल्डिंग है उसके अपोजिट में जाता है, तो कैसे मैनेज करना. तो डेरिवेटिव्स इज दैट इंस्ट्रूमेंट व्हिच हेल्प्स अस इवन इन दिस काइंड ऑफ अनसर्टेन सिनेरियो. तो हम एक पूरा वॉक थ्रू करेंगे आपको स्टार्टिंग से लेकर के कि हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस. एग्जिस्टिंग जो कैश मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं उनको भी कैसे बेनिफिट मिल सकता है, और कहाँ जहाँ लिमिटेशंस आती है या जो चीजें इंपॉर्टेंट है देखने लायक. So I'll talking about derivatives further. डेरिवेटिव का यूजेज काफी बढ़ गया है. इनफैक्ट आप देखेंगे कि अभी NSE इज द लार्जेस्ट बोर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. अभी जैन का ही रीडिंग आया है, तो हमारे यहाँ डेरिवेटिव का जो वॉल्यूम होता है वो लार्जेस्ट है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दैट सजेस्ट कि डेरिवेटिव के अंदर कितना पोटेंशियल है और किस टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट, और स्पेशली एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद एक्सपीरियंस ट्रेडर्स वगैरह इसका काफी यूज करते हैं. तो क्यों इस सेगमेंट को इतना ज्यादा यूज किया जाता है, क्यों इसके अंदर इतना वॉल्यूम होता है, और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, और साथ में थोड़ा बहुत जो लिमिटेशंस है वो क्या है, हम उन सब पे डिस्कस करेंगे.
Okay, so I guess we can start with the presentation. आज का जो flow है, I'll just describe क्या क्या topics पे हम लोग discuss करने वाले हैं. First, derivative basics. Host, if you can mute the participants, please. Anush, if you can host mute the participants, please. Anush. Yeah, just 1 second. Yeah. Please continue. Yeah. So आज के हमने जो वेबिनार के अंदर कंडक्ट करा है, टॉपिक जो कवर करे हैं उनमें डेरिवेटिव बेसिक्स है, यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस एंड स्ट्रेटेजीज, और जो कॉमन मिस्टेक्स कई बार हमने जो ऑब्जर्व करी है रैंडमली, जो ट्रेडर्स में मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक्स होती है ट्रेडर्स से, जिस वजह से काफी लोगों के एक्सपीरियंस कुछ जनों के जो खराब रहते हैं वो क्यों रहते हैं. अच्छा, ये हमारा सीरीज का दिस इज फर्स्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज ऑफ ऑप्शंस. इन अदर 2 सीरीज वी आर गोइंग टू कवर अबाउट ऑप्शन एनालिसिस. सो ये फर्स्ट जो सेशन रखा है पूरा बेसिक है, देन इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस. सो आने वाले 2 वेबिनार के अंदर हम ऑप्शन एनालिसिस के ऊपर और एडवांस लेवल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. आज का जो प्रेजेंटेशन है ये हमने बेसिक्स पे रखा है. So before continuing, I would like to introduce our derivative analyst Akash Chauhan with you. Akash is holding MBA in finance, and he has experience as a delta hedger and vol trader. Over past 5 years he is practicing this, so he is having fair idea कि एक ट्रेडर को जब ट्रेड करना है उस टाइम पे उसके क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं, क्या लिमिटेशंस होते हैं और कैसे उसमें से रिटर्न जनरेट करना. So that is his forte and focus. So let me introduce Akash. Akash, you can continue with the presentation. You are on mute, Akash. No, sir. Acha, okay. Yeah. Fine. You can continue, Akash. So hi, this is Akash here. So let's start with today's presentation. So first, these are the topics which we are going to cover in today's our presentation. First is derivative basics, like who all are participants in derivative markets, uses of derivative instrument. Next, we will cover basic of options, like what is call option and what is put options, risk and return in options, moneyness in options, and finally we will cover some basics option strategy and common mistakes while trading options. So before directly jumping to derivatives basics, first let's understand what is derivatives. So derivatives are securities that are derive their value from an underlying asset, which means it is building upon something. And most commonly, derivative instrument are futures and options. So most derivative instrument are exchange traded, like we trade here in NSE FO market, options and futures. So sir, next slide. So these are the participants in the derivative world. First is hedger. So there are traders who wish to protect themselves from the risk, or you can say uncertainties involved in the market. Second one is speculator. Speculators are extremely high risk traders who trade in the hope of making large quick gains. And third one is arbitragers. So they are low risk traders, as they buy one security in one market and sell same security in another market for small gains. Next slide, sir. So these are the usage of derivatives. The first use of derivatives is for risk management. So trader use derivative instrument to hedge their position, or we can say to manage their risk, downside or upside. Second is income generation. So there are some option strategies which are going to cover in this presentation, which traders can generate income from it, and these are generally high risk, high return strategies. And the last one is financial engineering.
So there are some mathematical or application based models which are generally used by financial institutions and hedge funds. So now let's begin our presentation webinar topic options. So there are total two types of options. One is call options and one is put option. So here in this slide we have given theoretical explanation of call option and put option, like an option which gives right but not the obligation to buy the underlying asset at a specific price, and put option is an option which gives the right to sell but not the obligation on underlying asset to sell at strike price. So in layman term, if I will tell you what is call option, so C stands for call option and C also stands for climbing. Climbing means to go up. So whenever you are expecting that the stock will go up, you will buy a call option. Same as P. P stands for put, and P also stands for plummeting, which means decrease rapidly in value. So whenever you are expecting that price of a stock will fall, you will buy a put option. Next, is these are some of the key terminologies in the options. First is buyer of an options. So buyer of options क्या होता है कि whenever you buy options, जहाँ पे आप options buy करते हो एंड आप प्रीमियम पे करते हो, उसको बायर ऑफ एन ऑप्शन बोलते हैं. एंड राइटर ऑफ एन ऑप्शन मीन्स कि आप ऑप्शन सेल कर रहे हो एंड यू आर रिसीविंग प्रीमियम्स, मीन्स कि आपको प्रीमियम मिल रहा है. सो दिस इज द राइटर ऑफ एन ऑप्शन. कॉल ऑप्शन and put option we already know. Next slide. So next is option price or option premium. So option price premium ये होता है कि current market price of that particular option, or you can say option price is the price at which option is trading. Expiry date is the date specified in option contract. जो हमारी expiry होती है उसको हम expiry date बोलते हैं. जैसे कि अभी expiry है 25th को, sorry 27th 28th को expiry है. So this is called expiry date. Strike price is the price at which a call option or put option can be exercised at maturity. Next slide. So ये है risk and return of a call option and a put option, buyers and sellers. So now let's understand this matrix. First is long call. So whenever you buy a call option, your profit is unlimited, but your risk is limited. Why? Because you are buying an option. तो जब भी हम options buy करते हैं तो हमारा upside target is unlimited, but हमारा downside जो है वो हमने जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही है. Same in the case of long put. Whenever you buy a put, so your return is unlimited, but your risk is limited. Now let's talk about short call. So whenever you short a call, जब भी हम call short करते हैं तो अभी हमारा रिटर्न जो है वो लिमिटेड होता है क्योंकि यू आर रिसीविंग प्रीमियम. फॉर एग्जांपल मैं एक स्टॉक है उसका ऑप्शन सेल करता हूँ 50 रुपीज में. सो मैक्सिमम आई कैन अर्न इज 50 रुपीज. सो मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट 50 रुपीज है, बट अपसाइड रिस्क वो 50 वाला 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है. तो मेरा रिस्क इज अनलिमिटेड. सेम इन द केस ऑफ शॉर्ट पुट कि माई रिटर्न इज लिमिटेड बट माई रिस्क इज अनलिमिटेड. Next, money raising options. So now let's understand what is in the money options, at the money options, and out of the money options. So first, let's talk about only call options. So in the money call options, your spot price is greater than your strike price. So if I will give you an example, कि for example Reliance is trading at 1400. तो जितने भी 1400 के नीचे ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, लाइक स्ट्राइक प्राइस में आपको एग्जांपल दूं 1380, 1360, 1340, 1320, 1300, ऑल द ऑप्शंस आर इन द मनी ऑप्शंस. अगेन
Reliance is trading at 1400, so 1400 strike price is my at the money options. Next is out of the money options. So out of the money options is for example Reliance is again trading at 1400, so जो 1420, 1440, 1460 strike price है वो हमारी out of the money strike price होती है. Put options में उसका reverse होता है कि in the money options is when your spot price is less than your strike price. कि अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि किसको इन द मनी ऑप्शंस बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बोलते हैं, कॉल और पुट में. दिस इज जस्ट अ बेसिक स्लाइड कि किसको ऑप्शंस इन द मनी ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस और एट द मनी ऑप्शंस कहते हैं. सो योर स्पॉट प्राइस इज लोअर देन योर स्ट्राइक प्राइस इज कॉल्ड इन द मनी ऑप्शंस इन पुट, whereas your strike price is equal to spot price is called at the money, and your spot price, when your spot price is greater than strike price, then it's called out of the money options. So next let's take one example. Next. So yes, as you can see in this slide that one left hand side is call side and the right hand side is put side. So all the options which are marked in yellow, or you can see this that blue box, all are the in the money options, call side, left hand side, and all the put side, same yellow mark options are in the money options, and reverse in this call option ki all the white mark options, or you can see that red box options, all the options are out of the money option, and in put side you can see all the red box options are out of the money options. So this is the option chain of Reliance Industry. Akash, 1 minute, sorry to interrupt you. Yes. Someone asked about spot price and strike price, so just give them understanding. And to all the participants, I know, I mean, these terminologies, especially for a layman, it might be very, one cannot get it at one go. So, what you can do is that just go through, we are going to anyways mail you this presentation. The reason we are, not explaining it in very much detail is because that you can understand, by reading any book or watching any videos. The point which we are trusting more on is after you are covered with the basics, how to use that is our main focus. So, and anyways, if you have any query, then revert to us. So Akash, just clear spot price, strike price. So spot price is your current market price. ओके, तो फॉर एग्जांपल रिलायंस अभी 1400 पर ट्रेड कर रहा है, 1440 पर ट्रेड कर रहा है, तो 1440 जो आपका कैश मार्केट का प्राइस है वो आपका स्पॉट प्राइस है. और स्ट्राइक प्राइस होती है कि व्हेन यू ट्रेड इन ऑप्शंस, सो देयर आर स्ट्राइक प्राइस व्हिच इज डिफाइंड बाय एक्सचेंज ओनली. जनरली ये 1% से 2% के गैप में होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 1420 के बाद 1440 है. सर, एम आई ऑडिबल? Yeah. So okay. So strike price are defined by exchange only. Hope I'm clear, sir. Right. Okay. And so what Akash has explained about options. So simple sa funda hai to understand. C equal to call and C equal to climb. So when you are expecting the prices to go higher, that is climbing of prices, that is call option. When you are expecting prices ki jab wo niche jayenge, plummeting, P equal to plummeting, that is put option. That is very simple and clear. And हम यहाँ पे बात कर रहे हैं mainly options buyer point of view से. Especially layman जो है वो हमेशा before actually starting, either you can start with paper trading जो अपन बोलते हैं, paper trading से आप start कर सकते हैं. Just जो concept है वो clear करने के लिए paper trading is the best way to go for. Talking about now, सबसे पहले ये काफी चीजें clear हो जाती है easily कि call option क्या है, put option क्या है, या call buy करना या मेरे को put short करना, ये भी इन जनरल क्लियर हो जाता है. जैसे मेरा यदि बुलिश व्यू है तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, मेरा बेरिश व्यू है तो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा. और उसी का अपोजिट होता है, यदि मेरा बेरिश व्यू है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन में सेल करता हूँ,
और जब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन में सेल करता हूँ। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमने देखा कि हर्डल आता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें, कि कईयों बार हमने ऐसा देखा है कि ये अंडरस्टैंडिंग तो आ गया, बट जैसे आकाश ने भी आपके सामने स्क्रीन पे लगा रखा है कि बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। जैसे स्क्रीन पे 1320 से लेके 1540 तक स्ट्राइक प्राइसेस लगी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस अपन सिलेक्ट करें, ये एक सबसे बड़ा हर्डल आता है। तो इसी मैट्रिक्स में जैसे बता रखा है मनीनेस ऑफ ऑप्शन, कि एट द मनी क्या होता है। एट द मनी मतलब जो स्पॉट प्राइस चल रहा है उसी के आसपास का आप स्ट्राइक प्राइस ले लो। आसपास मतलब वेरी क्लोज टू इट, एकदम क्लोजेस्ट जो है वो एटीएम हो जाता है, एट द मनी उसका प्राइस हो जाता है। आउट ऑफ मनी कॉल और पुट के लिए डिपेंड करता है। यदि कॉल ऑप्शन के हम बारे में हम बात करते हैं, जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है स्पॉट मार्केट के अंदर, जो कैश मार्केट है उसके अंदर जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर यदि आपकी स्ट्राइक प्राइस है तो वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो जाता है, एंड वाइस वर्सा फॉर पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने की जब अपन बात कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए मेरे को मेरा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपने कईयों बार देखा होगा कि ये कॉमन होता है कि मेरी जो स्ट्राइक प्राइस है वो सही सिलेक्ट नहीं हुई, मैंने कोई और स्ट्राइक प्राइस तो मैं तो बहुत बड़ा राइज आ गया या फॉल आ गया, एक्सपेक्टेड मूवमेंट आ गया, बट मेरी स्ट्राइक प्राइस के अंदर नहीं आया। तो वहाँ पे दो तीन चीजें देखी जाती है। सबसे पहले तो वो जो भी आप स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो या ऑप्शन देख रहे हो उसमें लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी जब तक कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अच्छी नहीं है वहां पे आपको ट्रेड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। एक तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा ट्रेड के डिफरेंस, स्लिपेज कॉस्ट जो बोलते हैं, मेरा बीटास के अंदर बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। सेकेंडली उसके मूवमेंट का, मैंने कई बार से जैसे कोई गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया है तो उसकी वजह से जब मेरे को दिखेगा कि स्टॉक तो मूव कर रहा है बट मेरा स्ट्राइक प्राइस मूव नहीं कर रहा है। तो जब हम इंट्राडे या 2-3 दिन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं और मुझे कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है तो मैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, उसी पे ज्यादा ध्यान लगाऊंगा। जब मैं कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, समझिए कि मोर देन 5% और सो, तब मैं आई विल प्रेफर टू गो फॉर आउट ऑफ मनी स्ट्राइक प्राइसेस। अच्छा, ये जो है एस्पेक्ट सिर्फ ऐसे ही डिसाइड नहीं होता है कि मतलब सिर्फ मैं एक मेरे स्टॉक के व्यू के ऊपर, उसके अलावा ऑप्शन के काफी जो जिस बेसिस पे ऑप्शन का प्राइस डिटरमाइन होता है ऑप्शन कैलकुलेशन के लिए, उसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें काफी सारी चीजें होती है, जैसे वोलेटिलिटी हो गया, टाइम वैल्यू हो गया, ये मेजर उसके अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स जो अपन बोलते हैं वो अभी हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर कवर नहीं करते बिकॉज बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल है, बट दैट इज हाउ यू डिसाइड। एक तो मनीनेस ऑफ ऑप्शन के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूँ। सेकेंड सबसे बड़ा हर्डल आता है जो कैश मार्केट में अपने को एक डील करने का आदत होता है, स्टॉप लॉस के साथ में, टारगेट के साथ में। तो वो मैं ऑप्शन का कैसे डिटरमाइन करूँ कि ऑप्शन का स्टॉप लॉस कैसे निकालूं या ऑप्शन का मैं टारगेट कैसे निकालूं। तो एक जनरल थंब रूल पेपर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूँ टू स्टार्ट विद। आप ऐसा करिए कि जनरली देखिए एटीएम जो भी मनी हो, एटीएम स्ट्राइक प्राइस जो होगा उसका डेल्टा ऑन एन एवरेज 0.4 0.5 के आसपास का रहता है। उसी हिसाब से आप समझिए कि एक रिलायंस आपने लिया 1500 का भाव चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस 40 रुपए या 60 रुपए का है फॉर एग्जांपल के लिए, तो उसका आप 0.4 60 रुपीज का 0.4 करता हूं मैं तो करीब 24 रुपए आता है। तो दैट इज गोइंग टू बी दैट इज हाउ इट वर्क। डेल्टा मतलब ये होता है कि यदि स्पॉट प्राइस का कोई चेंज आएगा, स्पॉट प्राइस के अंदर एक जो भी मूवमेंट आता है उसका मेरे इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा। सो दैट इज हाउ एक रैंडम जो कैलकुलेशन पेपर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली जो उसका कैलकुलेशन होता है वो ओआई का डेटा हमें देखना पड़ता है, वॉल्स की पोजीशन देखनी पड़ती है, साथ में जो हम कोरिलेट करते हैं कि स्टॉक के ऊपर मेरा क्या व्यू है, उन सारी चीजों को एक्यूमुलेट करके मैं एक्चुअल स्टॉप लॉस और टारगेट डिटरमाइन करते हैं। बट जस्ट हम यहाँ पे जो पेपर ट्रेडिंग की बात करें या अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट टू स्टार्ट, इस तरीके से आप एक रफ कैलकुलेशन करके स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई गेस Akash, you can continue with the presentation. So next is option strategies. So, sir, next slide. Sir, you are on mute. हाँ, एक ये हमने यहाँ पे और इसको पहले हाईलाइट करने का ट्राई करा था कि जो हमने देखा है कहीं काफी जने हो सकते हैं यहाँ पे जिनका एक्सपीरियंस रहा हो ऑप्शन के अंदर कि उन्होंने ऑप्शन में ट्राई करा हो ट्रेड करना और समहाउ एक्सपीरियंसेस खराब रहे होंगे।
तो एक जो मोस्ट सम ऑफ देयर आर सम ऑफ कॉमन मिस्टेक्स जो ऑप्शन ट्रेडर्स के अंदर हमने देखा है कि क्या मिस्टेक्स होती है। तो सबसे पहली मिस्टेक हम डिस्कस करें, लोग हैं ना, जैसे जो जनरल देखा है लेमैन, दे कंसिडर ऑप्शन को, जैसे हम स्टॉक्स को डील करते हैं कि भाई ये कई बार बाय एंड होल्ड का होता है कि मैंने ले लिया अभी ठीक है, जब तक एक्सपायरेशन है मैं या तो तब तक होल्ड करूंगा या मेरा व्यू बुलिश है एंड ऑल। ऑप्शन के अंदर डील करने के लिए उसको आप स्टॉक्स के जैसे डील नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन के लिए ऑप्शन का जो मूवमेंट होता है बहुत डायनामिक होता है, तो अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी क्लियर अबाउट द व्यू आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। मतलब बिकॉज टाइम, जैसे जैसे टाइम आपका रिड्यूस होते जाता है वैसे ही उसकी ऑप्शन की वैल्यू जो प्रीमियम है, प्रीमियम कंपोनेंट जो मैं आपको बता रहा था, एक तो मनीनेस होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू एक तो होती है जो मनीनेस के बेसिस पे डिटरमाइन होती है ऑप्शन की, और जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज टाइम वैल्यू। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है उसकी टाइम वैल्यू कम होती जाती है, तो जो प्रीमियम कंपोनेंट देखते हैं आप उसके अंदर से उसका टाइम वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज हो जाता है। तो कई बार आप देखेंगे कि प्राइस आपका वहीं का वहीं है और ऑप्शन का प्राइस जो है वो डिटोरेट हो रहा है। तो एक ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि किसी का भी ऑप्शन को देखने का जो तरीका होता है वो स्टॉक्स की जैसे आप उसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। ऑप्शन के काफी जो डिटर्मिनेंट होते हैं, प्राइस डिटर्मिनेंट, उनको आपको देखना पड़ेगा। तो सो से फॉर एग्जांपल मेरा व्यू है कि मैं स्टॉक को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 5 दिन के अंदर परफॉर्म कर दे और एक में 2% का 5% का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो यदि सेम डायरेक्शन में होता है, कई बार स्टॉक यहाँ पे सेम रहेगा बट वो 5 दिन आपके एलैप्स हो गए तो भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है जो एक ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, हमने सबसे बड़ा मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक में देखा है, बाइंग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस फॉर ट्रेडिंग। सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि जब भी हम कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने जाते हैं तो जनरली क्या होता है कि आउट ऑफ द मनी, जैसे अभी रिलायंस 1600 पे ट्रेड कर रहा है और उसके में स्ट्राइक प्राइसेस लगाने गया तो समझो 1650, 1700 वैसे स्ट्राइक प्राइसेस देखे क्योंकि उनके प्रीमियम कम होते हैं, तो वो ऑप्शंस हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि रिलायंस में 5% का मूव आया और मेरा या तो स्टॉक जो स्ट्राइक प्राइस है वो मूव ही नहीं करा या बहुत कम मूव करा। तो ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम देख सकते जब भी ट्रेडिंग का व्यू है, तो जैसे मैंने मनीनेस के अंदर भी एक्सप्लेन करा था कि हमेशा फोकस होना चाहिए एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। और यदि मैं कुछ बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, सब देखिए जब हम नॉर्मली कैश मार्केट के अंदर डील करते हैं तो वहां पे एक टाइम का थोड़ा सा लीवर ले लेते हैं कि यार ये हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर या महीना भर भी पड़ा रहा तो स्टॉक के अंदर अपन चलते कि जब तक वो स्टॉक प्राइस होल्ड कर रहा है उसे एक पर्टिकुलर मेरे सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर है तब तक मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है। दैट इज नॉट द केस विद ऑप्शंस। वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि मेरा व्यू जो सही जाए वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जाए, उतने ही टाइम के अंदर जाएगा तो ही उसका वैल्यू है। एंड थर्ड मेजर मिस्टेक इज इलिक्विड ऑप्शन। कोई भी मैं स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करूंगा वो इलिक्विड नहीं होनी चाहिए। अब इलिक्विड का मतलब होता है कि एक एन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होने ही चाहिए और जनरली आप जब स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग तो आप ऐसे स्टॉक्स के अंदर जाइए जिनकी लिक्विडिटी अच्छी है। जो भी जैसे फ्रंटलाइन स्टॉक्स है उनके अंदर आप देखेंगे कि लिक्विडिटी, रिलायंस, टीसीएस, इस टाइप के स्टॉक्स के अंदर हमेशा लिक्विडिटी काफी अच्छी बनी रहती है। और वही स्टॉक्स जो दूसरे हो गए जिनके अंदर मतलब वोलेटिलिटी भी कम है, वहां पे आपको जनरली दिखेगा कि ऑप्शन के अंदर लिक्विडिटी कम है, तो स्ट्राइक प्राइस भी और स्टॉक्स भी मैं थोड़ा लिक्विडिटी देख करके फिर सिलेक्ट करूँ। और देन देयर आर 2 मोर कॉमन मिस्टेक्स, चूजिंग रॉन्ग एक्सपायरी। यदि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी मूवमेंट आ जाए इसी एक्सपायरी के अंदर और कई बार मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर ट्रेड मार लिया तो वहां पे एडिशनल प्रीमियम में पे कर रहा हूँ। वहां पे उस जो पर्टिकुलर ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस में सिलेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी का, वहां पे उसके साथ एडिशनल प्रीमियम इंक्लूडेड है तो डेफिनेटली वो मेरे को कॉस्टली मिलेगा। और वाइस वर्सा कि मैं मूवमेंट तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैंने नेक्स्ट मंथ का बाइक नेक्स्ट मंथ करने की बजाय करंट का बाय कर लिया तो पता चला 3 दिन के अंदर वो मेरे को चीप तो मिल रहा था ऑप्शन, बट वो टाइम वैल्यू के अंदर ही प्रीमियम उसका पूरा इरोड हो गया। तो ये एक सबसे बड़ा अनदर कॉमन मिस्टेक है। देन स्ट्रेटेजी डज नॉट मैच योर आउटलुक। कई बार एक्सपेक्टेशन होता है, देखिए ऑप्शन का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ये है कि यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपका कोई व्यू नहीं है
तो भी आप मतलब इसके अंदर ट्रेड करके अर्न कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होता है भी कैश मार्केट में मैं डील कर रहा हूँ तो मेरा बुलिश व्यू है तो मैं बाय कर लूंगा स्टॉक, बेरिश व्यू है तो मैं सेल कर दूंगा। ऑप्शन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहेगी और मेरे को डायरेक्शन नहीं पता है, बस इतना पता है ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, या इसका वाइस वर्सा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा वोलेटिलिटी आएगी, मेरे को डायरेक्शन नहीं पता है, तो भी वहां पे स्ट्रेटेजी डिफाइंड है। यदि मेरा व्यू मटेरियलाइज होता है तो स्ट्रेटेजी डेफिनेटली आपको रिजल्ट देके जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट टाइम कहा जाता है। सो दैट आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपके आउटलुक के साथ मैच करके फिर मुझे ट्रेड में लेना चाहिए। अब कौन सी स्ट्रेटेजी लेना, कैसे लेना, दैट वी आर गोइंग टू सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स। आकाश। So these are the topics or these are the strategies which we are going to cover in this presentation. Next. So first strategy is naked long options. So long call option strategy is the most basic option strategy. Okay, and in this strategy you buy a call option and expecting security to go up. So this strategy is for any trader at any level. So कोई भी इसके अंदर ट्रेड कर सकता है. So when to run this strategy? So whenever you are bullish about the stock or index in intraday only. Why intraday? Because यहाँ पे आपको एक टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है, जैसे कि सर ने एग्जांपल दिया कि अगर आप मोर देन 1 डेज 2 डेज के लिए अगर ट्रेड करते हो नेकेड लॉन्ग ऑप्शन, तो आपको थीटा जो होता है विच इज वन टाइप ऑफ ग्रीक ऑफ ऑप्शन, तो वो थीटा आपको पे करना होता है, थीटा ऑप्शन से माइनस हो जाता है. So that's why we specially run this strategy in intraday. So this is also the alternate to buying an option, buying a stock. So strike price to choose. So this is the most important aspect, that in this strategy you only choose at the money strike price or slight out of the money strike price. So margin required for trading long option varies from 15,000 to 20,000. So next slide. So yes, so this is the example of TCS. ये कॉल हमने एग्जीक्यूट करवाया था नेकेड लॉन्ग ऑप्शन का. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दिया है कि बाय TCS 1950. सो 1950 इज स्ट्राइक प्राइस, CE इज कॉल ऑप्शन, 60 इज प्राइस जिस पे हमने एग्जीक्यूट करवाया था, स्टॉप लॉस इज 50 एंड टारगेट इज 80. सो लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी दैट +1x लिखा है, मींस कि एक लॉट हमने बाय किया था 28 मई 2020 इज एक्सपायरी डेट, 1950 CE इज स्ट्राइक प्राइस एंड 60 रुपीज is price of that option. So maximum profit, as we saw in that risk and return matrix, that maximum profit of a call option buyer is unlimited and maximum loss of call option buyer is limited to option price. So यहाँ पे 60 रुपीज ऑप्शन का प्राइस है और TCS का लॉट साइज इज 250. So maximum loss you will phase is minus 15,000. So this is the example of long call option. ये इसको आकाश सॉरी, ये पे ऑफ चार्ट है जो आपके सामने है, स्लाइड जो है, तो इसमें इट सजेस्ट कि समझिए जो आपने देख रहे हैं कि जीरो के नीचे द लॉस इज लिमिटेड, तो कॉल ऑप्शन का जो अपन ने एडवांटेज देखा ऑप्शन बाइंग का, और यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात करें तो द लॉस इज ऑलवेज लिमिटेड। जितना भी आपने प्रीमियम दिया है, अभी कल से TCS का प्राइस यहाँ से 1000 रुपये हो जाए, 800 हो जाए, आपने जो ऑप्शन का प्राइस दिया दैट इज द मैक्स लॉस विच यू आर गोइंग टू इनकर। हमने जो जैसे करा है कि जनरली कई बार ऑप्शन के जो प्रीमियम वैल्यू भी होती है, तो जो एक प्रोफेशनल वे में हम लोग निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे हम स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ भी उसमें काम कराते हैं। बट द मेन पॉइंट टू नोट हियर इज जो अनलिमिटेड वाला पोटेंशियल हम डिस्कस करते हैं कि अपसाइड अनलिमिटेड होता है। सो ये पे ऑफ चार्ट से आपको समझ पड़ता है कि जैसे जैसे उसका स्ट्राइक प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे इस कॉल ऑप्शन बायर का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा, और लॉस उसका लिमिटेड है 60 रुपीज तक, इससे नीचे उसको लॉस नहीं होगा। Yes, Akash, next. So next strategy which we are going to cover is naked long put option. So it is as same as long call option, but long call option में you are expecting that price will go up, and in long put you are expecting that security to go down.
So this strategy also can be performed by any trader at any level. So you can profit from this strategy if the stock falls or index falls, and this is the alternative to short selling of stock. So when to run this strategy? So whenever you are bearish on very short term, or you can say intraday, so strike price to choose. Mostly we trade in at the money strike price, and margin required for trading this strategy is same 15, varies from 15,000 to 20,000. So next let's see one example of, so this is the example of TCS. So हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि TCS का प्राइस नीचे जाएगा, सो हम लोग ने क्या किया, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ओके, सो TCS 2000 पुट हम लोग ने बाय किया 25 रुपीज में, 15 रुपीज इज आवर स्टॉप लॉस and target is 45 rupees. So generally we follow 1:2 risk to reward ratio. So as you can see, your maximum profit अगर stock TCS का नीचे जाता है, so we will profit from that, and maximum loss ऊपर कितना भी हो जाएगा, 2000 भी हो जाएगा, 2100, 2200 भी हो जाएगा, but maximum loss we will face is 6475 rupees, which is 25 rupees multiplied by lot size of 250. Next slide. So next slide is a covered call. So some investor will run this strategy after they have already seen nice gain on their stocks. So ये generally वही लोग strategy करते हैं जिसके पास already stocks पड़े हुए हैं and they are expecting no movement, or they are willing to sell stock if it is reaches to specific price. So for example, मेरे पास एक स्टॉक्स पड़ा है, फॉर एग्जांपल रिलायंस का, राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग इट, सो या लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ TCS ओनली. सो TCS का ऑलरेडी मैंने नीचे के लेवल पर स्टॉक्स लिया हुआ है, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 2200 के ऊपर जाएगा ये मंथ के अंदर. तो मैं क्या करूंगा, 2200 का एक कॉल है वो सेल कर दूंगा, ठीक है. सो इफ stock reaches to 2200, I will square off my selling position and I will sell TCS shares जो मेरे पास पड़े हुए हैं. So this strategy is run by जिसके पास already stocks पड़े हुए हैं, उसको ही ये strategy benefit होने वाली है. जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक है और उसके अलावा उसको अप्रोच करना है मार्केट को, और ये कवर्ड कॉल स्पेशली वैसे सिनेरियो में वर्क करता है जब आप थोड़ा सा अच्छा सस्टेंशियल मूव भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसके पास समझो स्टॉक नहीं है, वो फ्रेश पोजीशन लेता है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, वेदर इट इज कवर्ड कॉल या प्रोटेक्टिव पुट भी हम डिस्कस करते हैं. वहाँ पे जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी वही लोग अडॉप्ट करें जब आप एक कुछ अच्छा मोर देन 5% मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी ये स्ट्रैटेजी आपको रिटर्न देगी. बिकॉज यहाँ पे जैसे हमने देखा, आपने जो फ्यूचर बाय करा है और साथ में ऑप्शन आपने सेल करा है, और ऐसे ही जो प्रोटेक्टिव पुट है वहाँ पे हम फ्यूचर बाय करते हैं और साथ में एक प्रोटेक्टिव पुट बाय करते हैं, तो इन दैट केस एक ऑप्शन प्रीमियम होता है जो मुझे पे करना ही है, तो उतना कवर करने के बाद मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होता है. तो जनरली हम मूवमेंट अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब ये स्ट्रेटजीज वर्क करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दोज हु आर होल्डिंग स्टॉक्स जो फ्रेश इसमें ट्रेड कुछ भी जनरेट करना चाहते हैं. सर कैन यू गो टू प्रीवियस स्लाइड? हाँ. So yes, so talking about margin, so no additional margin required as you own the stock. So आप already आपके पास stocks पड़े हुए हैं and you are selling call options. So यहाँ पे आपको अगर आप options भी sell करते हो तो आपको additional margin pay नहीं करना. So right. okay. हाँ, प्रोटेक्टिव. सो ये स्ट्रेटेजी वो लोगों के लिए है जो ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में. सो प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी इज ऑफन यूज एज एन अल्टरनेटिव टू स्टॉप लॉस. सो हाउ अल्टरनेटिव टू स्टॉप लॉस, आई विल टेल यू. सो द प्रॉब्लम विद स्टॉप लॉस ऑर्डर इज दैट दे समटाइम्स वर्क व्हेन यू डोंट वांट देम टू वर्क, एंड व्हेन यू रियली नीड देम टू वर्क दे डोंट वर्क एट ऑल. मीन्स कि आपको व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए तभी आपका स्टॉप लॉस होता है,
एंड व्हेन यू रियली नीड कि हम मेरा स्टॉप लॉस हो, तभी ही स्टॉप लॉस नहीं होता है. सो एग्जांपल इफ आई विल गिव यू, फॉर एग्जांपल इफ यू आर होल्डिंग अ बिग पोजीशन इन अ स्टॉक and if your stop loss hits, okay, so after hitting your stop loss, stop price again reverse and go up. So generally ये सबके साथ होता है कि after hitting your stop loss price ऊपर जाता है. So in this case you won't be happy, okay. So as we have seen in the past, major announcement or major events happen overnight and the stock gaps down significantly on the next day. So अगर आप next day आपके stop loss से भी नीचे open होता है, so you will face more losses. So उसको cover करने के लिए we use protective put. So setup is that you already own the stock or you already own the future and you are buying a put. So as in this case we are already holding TCS future at 2011 and we are buying 2000 put at 26 rupees. So maximum downside risk I will face is 9380. So my maximum loss will be 9350, but my maximum profit will be unlimited because if TCS future ऊपर जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 2200 हो जाता है, तो मेरा 2011 वाला मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, बट मेरा 26 रुपीज वाला पुट है वो जीरो हो जाएगा. सो योर डाउनसाइड इज लिमिटेड बट योर अपसाइड इज अनलिमिटेड. Akash, if you can take example of long strangle and just long strangle and straddle for Bank Nifty and then explain, क्योंकि वो एक काफी है जिसमें लोगों का ध्यान है. उसके बाद अपन ऑप्शन स्प्रेड डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी में क्या होता है, आप एट द मनी का बाई और बाई कॉल करते हैं और बाई पुट करते हैं. सो दिस इज द कॉमनली यूज स्ट्रेटेजी फॉर बैंक निफ्टी कि whenever you are trading in bank nifty, so if you are expecting a big movement, large movement in bank nifty, so आप क्या करोगे कि फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी राइट नाउ ट्रेडिंग इज एट अराउंड 17,500 फॉर एग्जांपल. सो आप क्या करोगे, 17,500 का कॉल भी बाय करोगे वीकली एक्सपायरी का और पुट भी बाय करोगे. सो इससे क्या होगा कि आइदर साइड अगर मूवमेंट आता है, सो एक साइड का आपका फॉर एग्जांपल डाउन साइड 1000 पॉइंट का मूवमेंट आया, सो राइट नाउ मार्केट इज टू वॉलेटाइल, तो 1000 पॉइंट इज नथिंग फॉर बैंक निफ्टी. सो फॉर एग्जांपल डाउन साइड 800,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया, तो एक साइड का आपका कॉल ऑप्शन है वो जीरो हो जाएगा, बट आपका जो पुट ऑप्शन है वो 170 वाला हो जाए कि 1000 भी हो जाए. सो हियर इन दिस ऑप्शन स्ट्रेटेजी वी आर एक्सपेक्टिंग लार्ज मूवमेंट in either direction. So this is the one example of bank nifty straddle. So when bank nifty was trading at around 19,700, ये हमने ऑप्शन एग्जीक्यूट करवाया था. So हमने 17,900 का कॉल ऑप्शन बाय किया था 220 में और 17,900 का पुट बाय किया था 17,100 में. So as you can see here कि my maximum loss is 7783 but my maximum profit is unlimited. So even generally we follow 1:3 risk to reward strategy in this spread. So suppose if मैं 5,000 rupees का risk ले रहा हूँ, तो minimum I'm expecting 15,000 rupees in return. So suppose if I'm right at 50% of the time, still I will gain money. So this is the main basic funda behind long straddle. So as Akash rightly explained, and why we took example of Bank Nifty. Bank Nifty जो जब से weekly options introduce हुआ है, so you must have seen कि Bank Nifty में volume काफी हुआ है. The another reason to take example of straddle here is in straddle you don't have any view. मतलब आपको आपका ध्यान तेजी का या मंदी का नहीं है. वहाँ पे सिर्फ इतना है कि वॉलेटिलिटी काफी आएगी. जो आप पर्टिकुलर लेवल पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, वहां से आप एक्सपेक्ट करते हो कि इसके अंदर अच्छा खासा मूवमेंट आएगा बिफोर एक्सपायरी. तो ये स्ट्रैडल इज दैट ऑप्शन जहाँ पे आप इसको कवर कर सकते हैं. सबसे पहली बात, मूवमेंट किधर वाइल्ड आता है तो भी आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो डिफाइंड है, और ओनली प्रिटेक्स इज कि एक्सपायरी के पहले उतना मूवमेंट आना चाहिए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिफोर एक्सपायरी. देन ओनली द स्ट्रेटजी इज गोइंग टू यील्ड यू मनी. सो इसलिए एक एग्जांपल लिया था बैंक निफ्टी स्ट्रैडल का जो हमने बीच में करवाया था. Another is regarding long strangle. हाँ. So can you go to previous slide?
स्ट्रैडल इधर हाँ टॉपिक अपने वो स्ट्रैडल ही लिखा हुआ है, वो ओके स्ट्रैंगल है। तो स्ट्रैंगल लॉन्ग स्ट्रैंगल में हम लोग करते हैं कि वी बाय एट द मनी sorry out of the money option, call option and put option. So when to run this strategy when you are expecting a large move but not sure in which direction it will go. So margin required for trading bank nifty is approx 5,000 to 8,000 and for nifty it is approx 15,000 to 20,000. So example of long straddle. So same example when nifty bank nifty was trading at around 17,900 level, तो हम लोग ने 200 पॉइंट छोड़ के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय करवाए थे. सो 18 फॉर एग्जांपल 17,900 पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, तो हम लोग ने 17,700 का पुट बाय करवाया था 9860 में एंड 18,100 का कॉल ऑप्शन बाय करवाया था 134 रुपीज में. सो अगर आइदर साइड बड़ा मूवमेंट आता है तो वी विल गेन फ्रॉम दिस स्ट्रेटेजी. सो एज यू कैन सी आवर मैक्सिमम लॉस इज 4657. So someone is telling you how much investment capital one may need in. Okay. ऑप्शंस. So this is हाँ options में if you trading daily bank nifty straddle and strangle, so you minimum need 30 to 35,000 rupees. Why? Suppose if आपका दोनों का options का premium मिला के 10,000 rupees होता है, so you need additional margin to trade next options. So अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 5,000 रुपीज का लॉस होता है एक बार, सेकेंड बार लॉस होता है, सो यू नीड एडिशनल मार्जिन टू ट्रेड ऑप्शंस नेक्स्ट टाइम. अब यहाँ पे हम एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं. जो भी अपन ने पहले नेकेड ऑप्शंस का बात करा था कि सिंपली आप कॉल ऑप्शन बाय कर लो या पुट ऑप्शन बाय कर लो और उसे होल्ड करो, या तो पूरा एक्सपायरी तक या एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ अपन होल्ड कर सकते हैं. उसके ऑप्शन में हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज देखी. अब स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाना और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, उनके पे ऑफ्स भी बनाना करना, दैट इज वेरी इजी स्टफ टू डू. बट पॉइंट यहाँ पे है कि कौन सी स्ट्रैटेजी को किस टाइम पे ट्रेड करना, ये काफी ये डिपेंड करता है. तो जैसे अपन ने डिस्कस करा बुल कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड, बाकी ये भी अपना डिस्कस करना. लॉन्ग कॉल के ऑप्शन में यहाँ ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल इसलिए डिस्कस करा था कि ऑप्शन एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आपका कुछ व्यू नहीं है, देन ऑल्सो आप ट्रेड कर सकते हैं. सेकेंडली स्ट्रैटेजी का क्या एडवांटेज है ओवर नेकेड ऑप्शन. जनरली आपने देखा होगा मैक्सिमम रिटेल के अंदर जो पोजिशनिंग होता है वो नेकेड के अंदर ही होता है. ऑप्शन स्ट्रैटेजी में जब आप जाते हैं तो सेलिंग ऑफ ऑप्शन भी इन्वॉल्व होता है. तो एट इनिशियल लेवल हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्टिंग से करें. टू स्टार्ट विद द ट्रेड, मैंने जो आपको बताया ऑप्शन सेलिंग भी करनी है तो पेपर ट्रेड से स्टार्ट करिए, बिकॉज द मेन रीजन इज कि वहाँ पे रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड होता है. आपके जो आपने रिसेंट देखा होगा जो निर्मला सीतारमन के टाइम पे जो वोलेटिलिटी रहा या बाद में अभी जो शार्प वोलेटिलिटी रहा, तो ऑप्शन सेलर्स को का जो रिस्क जो अनलिमिटेड होता है वो कई बार इतना सस्टेंशियल हो जाता है कि एक ही आपका अनफेवरेबल ट्रेड काफी बड़ा हो सकता है. तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमेशा हेज करके रखें सो दैट योर मैक्सिमम लॉस इज ऑलवेज डिफाइंड एंड प्रोटेक्टेड. वो एक आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा, वो डिफाइंड होता है. सेकेंड थिंग इज स्ट्रैटेजीज के भी हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कि मैं क्यों स्ट्रैटेजी के अंदर जाऊं. स्ट्रैटेजीज के अंदर जाने का सबसे बड़ा मेरे को जो बेनिफिट मिलता है, एक तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं नेकेड ऑप्शन जब खरीदने जाऊंगा उसका जो भी प्रीमियम होगा से 100 रुपीज, उसके सामने यदि मैं दूसरा स्ट्राइक पे सेल करता हूं तो जो मेरी इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है एंड इन अदर टर्म्स मेरा जो टोटल रिस्क है वो रिड्यूस हो रहा है. हाँ, उसके लिमिटेशन भी है कि जहाँ पे रिस्क रिड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है. बट एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो मुझे मिलता है कॉस्ट रिडक्शन का. सेकेंडली, मैं जो वोलेटिलिटी होती है ड्यूरिंग द पीरियड आई एम होल्डिंग द स्टॉक, वो वोलेटिलिटी में कोप अप कर पाता हूँ. जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लगाता हूँ HDFC का. Everyone is able to see the screen? नो सर. हाँ दिख रहा है, ये आइरिस का स्क्रीन दिख रहा है सामने? नहीं दिख रहा है ना? नहीं. ओके ओके, वेट, हाँ मैं दिखाता हूँ. जैसे मैंने ये यहाँ पे HDFC का स्ट्राइक लगाया है ऑप्शन लास्ट इसका. ये देखिए यहाँ पे जो बेनिफिट मिलता है मुझे
ये देखिए, ये सामने आपके HDFC का पुट ऑप्शन जैसे हम लोगों ने कराया था, उसे हम लोगों ने 7 को कराया था, करीब ये 12.5 के आसपास 83 का प्राइस था। अभी ये मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने सिर्फ एक HDFC का पुट ऑप्शन बाय करा यहाँ से, और देखिए उसके मूवमेंट देखिए कि जब मैंने बाय करा यहाँ के आसपास था वो, वहां से वो ऊपर गया हाई में 135, फिर वापस नीचे गया 52 एंड देन 187 का हाई गया। अब ये मेरा नेकेड ऑप्शन होता तो 85 का लेने के बाद वो 135 जाता है और वापस से 52 आता है, तो डेफिनेटली एक शेकआउट आ जाता है कई बार सोचने में, क्योंकि ऑप्शन का प्राइस अपने देखा एक्सपायरी पास में आ गई या बहुत एडवर्स मूवमेंट आ गया, तो मैं वहाँ पे आई लूज, और वो एक फियर रहता है कि कहीं मेरा ऑप्शन का प्राइस जीरो नहीं हो जाए। अब इसी स्ट्रैटेजी के अंदर जैसे जो बियर पुट स्प्रेड एक होता है जिसके अंदर हम करीब एट द मनी एक ऑप्शन हम बाय करते हैं पुट ऑप्शन, और उसके एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो होता है वो हम सेल करते हैं। तो HDFC के अंदर ही मैं यदि 1500 का स्ट्राइक प्राइस देखूं, जो उस टाइम पे जब जब अपने 1680 इनिशिएट कराया था उसी के आसपास का, सो 7th को करीब 25-27 के आसपास का चल रहा था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ऐसा है कि ये 27 पे जब ये ट्रेड कर रहा था, वहां से ये प्राइस भी इंडिविजुअली 13 रुपीज गया और ऊपर में 61 का प्राइस गया। तो जब HDFC के अंदर जो ये स्पॉट प्राइस है इसके अंदर जो मैक्सिमम फॉल आया, उस टाइम पे मैं उसका बेनिफिट उठा पाया। ये जो सेलिंग आया इसके अंदर, हाँ यहाँ पे जो सेलिंग आया था, जो मेरा टारगेट करीब 1500 के आसपास का था, दैट वाज मेट। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑप्शन स्प्रेड का, कि वोलेटिलिटी को टेकल करने में सबसे बड़ा हेल्प करता है। तो वहां पे हम इसके कंपेयर कर सकते हैं कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हम जाते हैं तो उसकी ये दिस इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग इन ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। हाँ, लिमिटेशन भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी यही स्ट्रेट वे मूवमेंट आ जाता है HDFC के अंदर कि ये वोलेटिलिटी के बाद वोलेटिलिटी नहीं आती और एकदम से स्ट्रेट वे डिक्लाइन आता है यदि उसके अंदर, तो वो मेरा ऑप्शन का प्राइस मेरे को ज्यादा गेन देता। बट एज वी हैव सीन कि ऑप्शन के अंदर तो बहुत वाइल्ड मूवमेंट होता है, वोलेटिलिटी टेकल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग इन ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। सेकेंडली, अपन ने ऑलरेडी बैंक निफ्टी का डिस्कस करा कि क्यों जैसे मेरा कोई व्यू नहीं है स्ट्रेडल स्ट्रैंगल के, हमने स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करा। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग ऑप्शन स्ट्रेटेजी की जब बात करो, स्ट्रेटेजी में सेल तभी करें जब आपका रिस्क जो है वो हेज्ड हो, मैक्सिमम रिस्क जो है वो डिफाइंड होना चाहिए कि इसके नीचे वो नहीं जा सकता, जो कि काफी सारी ऐसी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हैं। तो आई गेस आकाश यू कैन टेक दिस वन एग्जांपल ऑफ बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड। अभी आप वापस से जो हमने कंटिन्यू कर एग्जीक्यूट सकते हो। करवाया था वो। राइट, यू कैन टेक दैट। मैं दिखाता हूँ। हाँ, बुल कॉल स्प्रेड। सो बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी वो है व्हेन जब हम ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट तब करते हैं व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग बुलिश मूवमेंट। सो दिस इज अल्टरनेटिव टू बाइंग डायरेक्टली कॉल ऑप्शंस। तो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड में हम क्या करते हैं कि एट द मनी का ऑप्शंस हम बाय करते हैं, और जो चीप ऑप्शंस होते हैं, जो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस, वो सेल करते हैं। सो इन दिस स्ट्रेटेजी, so setup is like you buy at the money call option and you sell out of the money call option. So for whom? तो थोड़ा slightly this is for intermediate traders. When to run this strategy? When you are bullish and you have a upside target. So for example, अब next example में देखेंगे कि भारतीय एयरटेल का हमने बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे करवाया था। सो एट दैट टाइम इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 530 लेवल एंड माय अपसाइड टारगेट वाज 550। सो मैंने क्या किया था कि 530 का व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 530, तो मैंने 530 का ऑप्शंस बाय किया था 23 रुपीज में, एंड मैंने 550 जो मेरा टारगेट था उसका ऑप्शन सेल किया था 17 रुपीज में। सो मैक्सिमम लॉस मेरा यहाँ पे था स्ट्रेटेजी में इस 23 रुपीज माइनस 17 रुपीज multiply by lot size. So my maximum loss is 11,106 rupees, whereas my profit is 25,916. So profit कैसे calculate हुआ इसके अंदर स्प्रेड के अंदर कि difference between strike price. So difference between strike price is 20. So 550 minus 530 is 20 plus 23 rupees plus 17 rupees because we are receiving premium
minus 23 rupees multiplied by lot size. So this is how हमारा maximum profit calculate होता है यहाँ पे. So as we said that we follow minimum 1:2 risk to reward ratio. तो ये risk to reward ratio में भी बैठ रहा था हमारे, और टारगेट भी एक्सपेक्ट हम लोग 550 का कर रहे थे, विच इज अराउंड 3 to 5% अपसाइड. राइट. सो एज इन दिस केस आप एक्सप्लेन यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी का जो अपने एडवांटेज का बात करा. सिर्फ यदि मैं भारतीय एयरटेल का यहाँ पे 530 का कॉल ऑप्शन इनिशिएट करने जाता तो मेरा प्रीमियम होता 23 रुपीज का, और वही इन जनरल यदि मैं कोई स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो 23 रुपीज का ही मेरा रिस्क हो जाता कि उतना ही प्रीमियम मुझे एट एनी टाइम कल से भारतीय एयरटेल यहाँ से नीचे चले जाता, कुछ भी हो जाता फॉर दैट मैटर, तो 23 रुपीज वॉज माई रिस्क. और यही हमने देखा कि साथ में यदि मैंने दूसरा एक हायर स्ट्राइक प्राइस का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो है मैंने सेल कर दिया, तो ये जो मेरा 23 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, 23 रुपीज का जो स्ट्राइक प्रीमियम है, दैट हैज रिड्यूस टू ओनली 6 रुपीज. और मैं वहाँ पे पोजीशन बन चुका हूँ. हाँ, मेरा एज आई सेड कि जैसे मेरा रिस्क रिड्यूस हो रहा है तो रिटर्न भी रिड्यूस हो रहा है, बट कई बार आप देखिए कि फर्क कितना आ जाता है कि ऑलमोस्ट 1/4 मेरा कॉस्टिंग हो गया उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर. ये कई बार देखते हैं अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारा मिल जाता है, बट यदि मेरा पर ट्रेड रिस्क कम रहेगा तो उतना मैं सस्टेन कर पाऊंगा. कोई यदि गलत ट्रेड चले भी गया तो मैं उससे निकल के देन आई कैन प्लान फॉर एनी अदर. सो दिस इज वन प्रैक्टिकल वे जहाँ पे यहाँ पे अपने एग्जांपल देखा. बेयर पुट स्प्रेड HDFC का जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि जैसे 83 का मेरा इन्वेस्टमेंट होता, 83 का पुट ऑप्शन का प्राइस होता, वही मैंने 27 रुपीज में उससे सेल करके जो मेरा दोनों का डिफरेंस हो जाता है दैट इज 55 रुपीज, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है. और अपने वहाँ पे देखा कि इस स्प्रेड के अंदर कैसे मैं उस वोलेटिलिटी से कोप अप भी कर पाया. जो वोलेटिलिटी आती है इंडिविजुअल, यदि मेरा स्ट्राइक प्राइस होता ऑप्शन नेकेड ऑप्शन मैंने होल्ड करा होता तो उसको मैं वोलेटिलिटी को होल्ड भी कर पाता था. सो आई गेस आकाश और कोई पोर्शन बचा नहीं, वी कैन हैव द Q&A सेशन नाउ. सर नेक्स्ट वेबिनार में क्या कवर करने वाले हैं? हाँ, अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि ये जो भी हमने डिस्कशन करा दैट वाज रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस. अब और एंड एज आई टोल्ड कि आने वाले 2 और सीरीज हम इसमें 2 और वेबिनार्स हम कंडक्ट करने वाले हैं इस ऑप्शन सीरीज के अंदर. तो उसमें हम सिर्फ ऑप्शन के डेटा को देख के आप कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं. उसके अलावा काफी सारे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं सिर्फ डेरिवेटिव एनालिसिस में भी, मेड भी, ओपन इंटरेस्ट, PCR, कई बार आप देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस होगा, आपने यदि सुना होगा, या शिफ्ट इन रेंज होता है. तो इस टाइप का ऑप्शन को लेकर के एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं सिर्फ ऑप्शन के डेटा को लेकर के. सो वी आर गोइंग टू कवर दोज. और सेकेंडली स्पेशली इंट्राडे में यदि आपको ऑप्शन ट्रेड करना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, और हमारा ऐसा सोचना है कि इंट्राडे में जो ऑप्शन का ऑप्शन डेटा एनालिसिस है उसका जो एक्यूरेसी है इंट्राडे या 2-3 डेज के अंदर, वो एक्यूरेसी काफी अच्छा है ऑप्शन डेटा एनालिसिस जो हम करते हैं उसके बेसिस पे. सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट टेक दोस काइंड ऑफ टॉपिक्स इन द अपकमिंग वेबिनार. सो इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड you can definitely leave your contact details so that you will be notified by the of the next upcoming webinars which we are going to have. So that's it for the day. ये हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑफर करते हैं, सारा आपको ईमेल के अंदर आ जाएगा. दिस इज द ऑप्शंस परफॉर्मेंस फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स. यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉट को लेकर के कोई भी जो भी हमने इंडेक्स पे करा या स्टॉक्स पे करा, एक सिंगल लॉट को लेकर के हमारा लास्ट फ्यू मंथ्स का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कैसे क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहा है उसके अंदर. And आप लोग I guess Hanoj, if you have anything to say about our joining the Telegram and club. Thank you, Hansraj. I hope everyone has found this webinar conducted by Hansraj and Akash very fruitful. And if you want to know more about advisory products and research services, please message us on official BP Wealth Club. We have on WhatsApp and on Telegram. Also, kindly follow us on Instagram, Facebook, LinkedIn, and YouTube for all our videos. And every morning, Hansraj sir comes on Facebook and shares his views on the technical point of view with all our clients and all our customers. So now we are open for Q&A session.
विक्स का जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, हाउ टू प्रेडिक्ट विक्स फॉर द होल डे फॉर ऑप्शंस। तो सर ऐसा है, विक्स का जो मूवमेंट है इन जनरल हमने देखा है कि इट वेरीज। जैसे जनरली लोग देखते हैं इंडिया विक्स को ट्रैक करते हैं इंडेक्स के मूवमेंट के लिए, वैसे ही इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस, इंडिविजुअल स्टॉक की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है विच वेरीज। तो ऐसा नहीं कि हम इंडिया विक्स देख के हम स्टॉक के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। सेकेंडली हमने ऐसा देखा है कि काफी सारी चीजें और होती है। इंडिया विक्स का मूवमेंट अभी देखने में इसलिए है, स्पेशली ये जो मेजर इवेंट्स लाइंड अप होते हैं, जो हमने देखा कि भी रिसेंट कोरोना का था, बियर मार्केट का जो इम्पैक्ट देखा हमने, इसके अलावा कोई भी मेजर इवेंट होता है, बजट एंड ऑल, वहां पे उसका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है और उसका इम्पैक्ट भी काफी रहता है। बट इन जनरल हम जब ट्रेड करते हैं तब हमें मेन देखना है कि एक तो स्पॉट का प्राइस का क्या एक्सपेक्टेशन है हमारा, सेकेंडली उस पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस हम देख रहे हैं उसके अंदर उसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैसा है। और ऐसा जनरल रूल है कि भाई बहुत ज्यादा जब वोलेटिलिटी बढ़ा हुआ रहता है तो वो जो ऑप्शंस हो जाते हैं वो ओवर वैल्यूड बन जाते हैं, मिस प्राइसिंग ऑफ ऑप्शंस बोलते हैं। वहां पे वो ऑप्शन का वैल्यू काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, तो उनको छोड़ के हम दूसरे स्ट्राइक प्राइजेस के अंदर जाएं जहाँ पे उनका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। बट दैट इज अगेन यू शुड नॉट लुक एट अ बिगिनर लेवल। जो लोग देख रहे हैं वो उस पे फोकस करने की बजाय इंडिविजुअल जैसे मैंने मनी नेस का आपको बताया, या फिर स्पॉट प्राइस का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, टाइम वैल्यू का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो वो बेटर रहेगा। सेकेंडली ऑप्शंस का जो डेटा होता है, जैसे मैंने बताया हम जो अपकमिंग वेबिनार में कंडक्ट करने वाले हैं, सिर्फ ऑप्शन के डेटा को एनालाइज करके आप व्यू डिटरमाइन करें, उस पर ज्यादा फोकस करें। तो स्पेशली फॉर लेस देन 2-3 डेज जो ट्रेडिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्राडे टू 2-3 डेज, वहां पे उस डेटा का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। वो कैसे करना, दैट वी आर गोइंग टू टेक इन द अपकमिंग वेबिनार्स। So someone is asking what is Nifty spot price. So Nifty spot price is current market price of Nifty in cash. Yes, index. So Nitesh Jain is asking, can you tell the new margin mechanism in option trading? So right now, if you sell one option of Nifty, it required around 65,000 to 70,000 to sell one option. When someone has asked about कि कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, तो ऑप्शंस की बात करें, हमारे जैसे जो डिजाइन प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके अंदर जब हम ऑप्शन सिर्फ बाय की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे स्ट्रैटेजीज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऑप्शन बाय के अंदर हम एक करीब 1 लाख रुपए का अमाउंट होता है जिसके अंदर यू कैन स्टार्ट विद। वहाँ पे आप एक एक लॉट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जो हमारे कुछ जो ऑप्शन प्रोडक्ट डिजाइंड है उनके अंदर सिर्फ ऑप्शन बाय के जो है वहाँ पे इतना हो जाता है। जहां हम सेलिंग इन्वॉल्व करते हैं, जैसे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के अंदर जाते हैं, तो बिकॉज सेलिंग लेग इन्वॉल्व होता है, मार्जिन इन्वॉल्व होता है, तो वो फिर एटलीस्ट 2.5-3 लाख से का मिनिमम अमाउंट हो जाता है जो रिक्वायर्ड रहेगा। दैट इज नॉट द कंप्लीट रिस्क बट इन्वॉल्वमेंट बिकॉज ऑफ द मार्जिन पार्ट। And Aditya Singh is asking how to check liquidity. So हाँ, liquidity means कि options में कितना volume हो रहा है वो आपको देखना है. So minimum if you are trading in stock options, so आपको minimum देखना है कि minimum 100 से ज्यादा lots trade होना चाहिए in particular options. So वहाँ पे आपको liquidity अच्छा मिलेगा. And if trade आपके against भी जाता है, so you can easily exit that position. राइट। एंड जैसे अभी यहाँ पे किसी ने पूछा कि मेरे को 100 शेयर में काम करना है और वहाँ पे लॉट साइज फिक्स है, तो सर ये लिमिटेशन है फॉर श्योर। बट आप जैसे इन जनरल कैलकुलेट करेंगे कि यदि मैं इतना, जैसे मैंने आपको एट द मनी का ऑप्शन का बता रहा था कि मैं यदि निफ्टी का अभी वैल्यू वाइज ट्रेड करने जाऊँ तो अमाउंट काफी होता है। बट आप देखिए कि ऑप्शन के अंदर जब मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ तो एक 10 जो जनरल बैंड बताया कि 15 से 25 मैक्स इतना होता है प्रीमियम, उतने में मैं एक्सपोजर ले रहा हूँ पूरा मतलब 7-8 लाख का जो एक्सपोजर होता है उतना मैं मिनिमम एक्सपोजर लेके 6-7 लाख का लेकर के काम कर रहा हूँ। तो एक वहाँ पे लिबर्टी हो गई। एट द सेम टाइम जो मूवमेंट है, यदि मैं रिटर्न ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूंगा, रिस्क जितनी है तो वैसे ही रिटर्न भी है। आप देखिए कितने भी लिवरेज प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ही लिवरेज का होता है। और ऑफ कोर्स ट्रेड तो आप भले कैश के अंदर करें या फ्यूचर के अंदर करें, आपका सही जाना तो इम्पोर्टेंट है ही, या एक रीजनेबल सक्सेस रेशियो एंड जो मेन ट्रेडिंग का की पॉइंट है जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल होते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
तो जितना आपका सही जाना जरूरी है उतना ही आपका पर ट्रेड आप कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख रहे हैं और रियलाइज्ड आपका रिटर्न कितना आ रहा है इन कंपैरिजन टू व्हाट यू आर लूजिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Someone is asking, is there any simple strategies for option buying? So yes, first आपको एक डायरेक्शन डिसाइड करना है कि कौन से डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर बुलिश तो आप बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्ट नेकेड ऑप्शन बाइंग. सो आप बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हो, जैसे कि आपको एट द मनी ऑप्शन बाई करना है और आफ्टर द मनी ऑप्शन सेल करना है. सो फॉर दैट इसमें क्या होगा कि आपका मिनिमम जो रिस्क है वो आपका लिमिटेड हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपका रिस्क लिमिटेड हो जाएगा. एंड फॉर दैट टू ट्रेड दैट option you need minimum 65,000 to 70,000 rupees margin. So this is the very simple strategy where you buying at the money option and you are selling out of the money options. राइट. ब्रेक इवन पॉइंट का कोई डिस्कस कर रहा था, तो ब्रेक इवन पॉइंट सर वो होता है कि जब मैं कॉस्ट कंप्लीट करके वहां पे आ जाता हूँ जहाँ पे मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है. जब मैं स्ट्रैटेजी या कोई भी स्ट्रैटेजी इनिशिएट करता हूँ तो उसके अंदर मेरा अपने देखा जो मैक्सिमम लॉस है दैट इज माय कॉस्ट, और वो लगना ही है. यदि वो व्यू अनफेवरेबल जाता है तो उतना लगना ही है. ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आके मेरा प्रॉफिट लॉस इक्वल हो जाता है. दैट मीन्स जो मेरी कॉस्ट इनकर हुई है वो तो इनकर मतलब कवर अप हो गई है. नाउ मैं उसके ऊपर प्रॉफिट में स्टार्ट होऊंगा, क्योंकि सीन्स अपन ने देखा कि ऐसा नहीं है. वहां पे अपन ऑप्शन के अंदर यू आर पेइंग अ प्राइस फॉर द चॉइस यू आर मेकिंग. सो उसका एक आपको अमाउंट पे करना पड़ता है जिसको अपन प्रीमियम बोलते हैं. प्रीमियम पास्ट एक स्पॉट प्राइस के अंदर या जो भी स्टॉक है आप देख रहे हैं उसके अंदर एक इतना मिनिमम मूवमेंट आ जाए जिसके ऊपर आपका जो पोजीशन है वो ब्रेक इवन हो जाए, उसके ऊपर वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी. तो दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. वो स्ट्रैटेजी में डिपेंड करता है कि मेरे स्ट्रैटेजी के अंदर कितने लेग हैं. अनदर थिंग विच आई वांटेड टू टेल इज कि ये हमने बिल्कुल एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस करी जिनके अंदर 2 ही लेग इन्वॉल्व है. ऐसी और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज होती है जो करी जा सकती है, बट उसके लिए थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए और आपका इन्वॉल्वमेंट उतना होना चाहिए. आई मीन लेमेन्स को हम ये सब चीजें लेमेन को नहीं रेकमेंड करते हैं बिकॉज उनको assuming कि they are fresher and then they don't have that much idea about the markets. So first start with the basic stuff. फिर काफी complex strategies भी होती हैं, but all in all मुझे लगता है कि strategies बहुत सारी मिल भी जाती है, उसको execute करना बहुत important होता है, which we have highlighted कि कौन से scenario में कौन सी strategy use करना वो बहुत important होता है. तो our focus is on that. And someone is asking what is paper trading? पेपर ट्रेडिंग नथिंग की मतलब जैसे एक्चुअल ट्रेड करने की जगह आप नोट कर लो. आपने अभी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए जैसे हम कोई भी स्ट्रैटेजी आपने मिली कि भाई मेरे को लगता है कि ये पर्टिकुलर टूल मेरा वर्क करता है, वो ऑप्शन का हो, टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, कुछ भी हो, आपको लगता है कि यार इस लॉजिक से मैं बाय करता हूँ, ये पर्टिकुलर कोई भी ट्रेड करता हूँ तो वो अच्छा रहता है, तो उसको टेस्ट करा जाता है. जो एक प्रोसेस हो तो अपन पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं कि इंस्टीड ऑफ पुटिंग एक्चुअल ट्रेड मैं वहां पे नोट कर लूं कि मैंने इस लॉजिक की वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाय या सेल जो भी रिकमेंडेशन करा उसे नोट कर लूं एंड सी इट्स रिजल्ट, कि मैं उसको थोड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेक करके देखूं कि मैंने ऐसा करा होता तो क्या रिजल्ट होता. सो आई वुड ऐसा नहीं हो कि मेरी कहीं स्ट्रैटेजी इल्यूजनरी मुझे लग रही हो कि ये गेन काफी अच्छा देती है और मैंने जब पेपर ट्रेड करने गया तभी पता चला कि नहीं यार इसमें तो ये मिस्टेक है या ये चीजें मेरे को समझनी है. जैसे ऑप्शंस के केस में हमने कई बार देखा है इल्यूजनरी पे ऑफ्स बन जाते हैं कि अरे यार रिस्क कितना है या पूरे मेरे को मतलब एक्सपायरी तक होल्ड करने को मिल रहा है, प्रीमियम कम है, और कई स्ट्रैटेजीज के अंदर पे ऑफ्स ऐसे बनते हैं कि यार लिमिटेड रिस्क है और रिवॉर्ड अनलिमिटेड है, मतलब मोर देन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो बैठ रहा है मेरा मोर देन 5 टाइम्स 10 टाइम्स, बट उनके कुछ प्रीटेक्स्ट होते हैं, कुछ चीजें हिडन होती है जो आपको देखना पड़ती है कि यार ये चीजें तभी इफेक्टिव होगी जब ये पर्टिकुलर इवेंट अनफोल्ड होगा या प्राइस के अंदर इतना मूवमेंट आ जाएगा विद इन दिस मच टाइम. तो इसलिए पेपर ट्रेड सजेस्ट किया जाता है. And again he is asking when expiry comes in options. So yes, it is like future only, last Thursday of month. Rakesh Kapade is asking, I have bought call option at 9100, call Nifty is going up by 9100 but my call is not going up. So यहाँ पे दो फैक्टर, so यहाँ पे ऑप्शंस ग्रीक आते हैं कि थीटा, गामा, वेगा एंड डेल्टा. सो कितने स्पीड से आपका ऊपर जा रहा है निफ्टी एंड कितने टाइम में जा रहा है, सो दैट इज आल्सो मैटर. सो दैट वी आर गोइंग टू कवर इन आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन.
इसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। जब अपन टेक्निकल की बात करते हैं या जनरल ट्रेडिंग के अंदर, कि ऑप्शन के अंदर स्पेशली नॉर्मल अपन जब ट्रेडिंग करते हैं कैश मार्केट के अंदर, वहाँ पे मेरे को मतलब होता है कि इन जनरल की स्टॉक यहाँ पे नीचे कितना जा सकता है वो डिफाइंड होना चाहिए, अपसाइड कितना है वो डिफाइंड होना चाहिए, दैट मीन्स प्राइस मूवमेंट कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सेकेंड इज द कितने टाइम में, और ऑप्शंस के साथ और वैसे भी ट्रेडिंग के अंदर रहता है किस स्पीड से वो जाएगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ऑप्शंस में। ये तीनों चीजें, और देयर आर वेज टू डू इट। बहुत मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड करता है, बट ऐसा नहीं कि इतना कॉम्प्लेक्स है और नहीं किया जा सकता। बट वहाँ पे ऑप्शन के केस के अंदर ये बहुत जरूरी है कि कितने किस स्पीड से जाने वाला है और कितने टाइम में जाने वाला है, और मेरे को पे ऑफ तभी मिलेगा या मेरी स्ट्रेटेजी या मेरा ट्रेड तभी प्रॉफिटेबल होगा जो मैंने सोचा था वैसा एग्जैक्ट मटेरियलाइज हो, तब जाकर के मुझे उसके अंदर रिटर्न मिलता है। If IV increase from it, then approx how much premium will increase? सर इसको वेगा का कैलकुलेशन बोलते हैं और डिपेंड करता है। मतलब मैंने जैसे आपको बोला स्टॉक का अलग है, इंडेक्स का अलग है, और यहाँ पे हमने ऑप्शन कैलकुलेटर होता है, ऑप्शन कैलकुलेटर के बारे में डिस्कस नहीं करा है। ऑप्शन कैलकुलेटर को भी किया जा सकता है डिस्कस, बट आई गेस दोज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब अपन डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं बहुत सारी चीजें जहाँ आ जाती है, तो काफी इफ वर्ड्स डिराइव होते हैं। तो रादर देन गोइंग इनटू दैट कैलकुलेशन वी प्रेफर देयर आर सम इजी एंड बेटर टूल्स अवेलेबल बेस्ड ऑन व्हिच यू कैन एक्चुअली डिटरमाइन कि आपको कहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या स्टॉप लॉस या टारगेट डिटरमाइन करना, दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट इन नेक्स्ट सेशंस। So Nirav Shah is asking when and how should we decide strike price for straddle? So for trading straddle, you trade in only at the money options. So if Nifty is trading at 9,000, तो आप 9,000 का कॉल बाय करते हो और 9,000 का पुट बाय करते हो। So आप एट द मनी का ही स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करते हो स्ट्राइडल के अंदर, स्ट्राइडल स्ट्रेटेजी में। एनी अदर क्वेश्चंस? आई मीन एक्चुअली जब स्क्रीन से ब्राउज करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जो भी रैंडमली दिख जा रहे हैं, बट रेस्ट एश्योर्ड वी आर गोइंग टू रिवर्ट यू ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। जो भी आपने भेजे हैं उनका आपको ईमेल के साथ में वी आर गोइंग टू रिवर्ट ऑन दैट। आई एम ट्राइंग टू टेक एज मेनी एज वी कैन राइट नाउ। We will give answers to all of the questions on the Q&A section directly into your emails. And also, guys, please remember we upload all the answers to all the questions on our blog. So don't forget to visit the BP Wealth blog to see all the questions asked by the other attendees and the answers as well. Yes sir, intraday is possible in option trading. We do a lot. I mean, मैंने जैसे आपको बताया स्पेशली ऑप्शन डेटा एनालिसिस जो होता है, ऑप्शन का एनालिसिस की एप्लीकेबिलिटी जितनी 2-3 दिन में है उतनी आप हमने पोजिशनल में उतनी नहीं देखी है। पोजिशनल में फ्यूचर्स हो गया, ओपन इंटरेस्ट का, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट का, उनका एप्लीकेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो स्पेशली 2-3 दिन और उससे कम टाइम फ्रेम में ऑप्शन के जो डेटा एनालिसिस है उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा हमने देखा है, काफी अच्छा है। सो डेफिनेटली वो है और हम लोग कर रहे हैं। आप लोग मतलब हमारे जो चैनल्स दिए हैं उन पे यू कैन गेट कनेक्ट एंड हैव ट्रायल ऑफ द रिकमेंडेशंस व्हिच वी आर गिविंग। My call is close 50 student tomorrow next and then how much we calculate value will open? तो सर 9100 का जैसे आपने बोला 100 पॉइंट के गैप अप से ओपन होता है, तो अगेन आई कम बैक टू द सेम थिंग, टाइम वैल्यू, वोलेटिलिटी और स्पॉट प्राइस के मूवमेंट। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने सिर्फ टाइम प्राइस को इनकॉर्पोरेट करा कि 100 रुपए का मूवमेंट आया है। अभी कितने दिन एक्सपायरी को बचे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और आईवी किस लेवल पे चल रही है। वोलेटिलिटी आईवी इसलिए रहता है क्योंकि अभी जब ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है तो डेफिनेटली उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम रहता है ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस के अंदर। सो कभी भी जब ऑप्शन प्राइस का जो प्रीमियम डिटरमाइन होता है वो इन सारे ऑप्शन ग्रीक्स को लेकर के फिर कैलकुलेट होता है। तो सिर्फ इन डेटा पॉइंट से आप नहीं निकाल सकते कि कितना ओपन होने वाला है। आईवी इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी जो इन जनरल बोलते हैं, तो हर स्ट्राइक प्राइस का एक अलग वोलेटिलिटी होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अपन जिसको बोलते हैं, दैट इज आईवी।
which strike price is good for selling put or call for any stock. नहीं सर, ये बहुत जनरलाइज टर्म है जो आप पूछ रहे हैं मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में कि विच स्ट्राइक प्राइस गुड। तो कहीं पे भी सबसे पहली बात, एक तो अपन ने डिस्कस करा था मनी नेस के बेसिस पे कि सबसे ज्यादा मूवमेंट हम कभी भी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के आसपास करेंगे। सेकेंडली आपके परसेप्शन के ऊपर है कि आप कितना मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझिए आप जब भी आउट ऑफ मनी को तब फेवर करिए जब व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग गुड मूवमेंट, आपको लग रहा है 2-3% का 1-2% का मूवमेंट ऐसा लग रहा है, तो देन एट द मनी इज द बेस्ट वे टू गो फॉर। आउट ऑफ मनी हम जनरली तब प्रेफर करते हैं जब हम बड़ा कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइदर साइड, जो भी हम स्ट्राइक प्राइस करते हैं, वेदर इट इज कॉल और पुट इट डजंट मैटर। First day or last day, which is the best day to trade in options, first or the last day of expiry? दोनों ही डे एक्चुअली सर काफी रिस्की होते हैं। तो जो हमने जनरल प्रैक्टिस देखा है ऑप्शन ट्रेडर्स, जो सीरियस ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, वो ये 2 दिन के अंदर मतलब जब उनके कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स है तभी जाके वो ट्रेड बिठाते हैं। और जनरली आप देखिए कि जब डे ये स्टार्ट होता है, ऑप्शन एक्सपायरी स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी होता है, तब जनरली अपने को प्रीमियम के वैल्यूज थोड़े ज्यादा मिलते हैं बिकॉज उसमें पूरा मंथ का टाइम वैल्यू इंक्लूडेड है, तो उस वजह से उसका प्रीमियम हाई रहेगा। और लास्ट डे के अंदर एक्सपायरी के अंदर स्पेकुलेटिव मूवमेंट ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे किस लेवल पे स्पॉट क्लोज होने वाला है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो स्पेशली न्यू एंट्रेंट्स को उन डे पे नहीं ट्रेड करना है, तो अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस ही ट्रेड करना चाहिए। So someone is asking how to choose best strike price for OTM call put trading. So आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपको देखना है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस में। फॉर एग्जांपल इफ लेट्स से टेक एग्जांपल ऑफ TCS. सो TCS इज ट्रेडिंग एट 1900 बट उसका हाईएस्ट कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट है 2200 के स्ट्राइक प्राइस में। सो आपको वही स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, या तो 2200 की या तो 2200 की ऊपर वाली, लाइक 2220 2240। सो दीज आर द बेस्ट स्ट्राइक प्राइस टू सेल ऑप्शंस। मंथली एक्सपायरी बाय करना बेटर है टाइम लेके कूपन से। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इफ यू आर ट्रेडिंग इन निफ्टी तो आप मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस बाय करो और सेम स्ट्राइक प्राइस के वीकली एक्सपायरी के सेल करो। Where to get options data? If you search on Google NSE options chain, so you will find options chain data. How to minimize loss in volatility for writing out of the money option? सर राइटिंग के अंदर मैंने आपको बोला कि राइटिंग के अंदर ऑप्शन राइटिंग की जब अपन बात करते हैं तो वहाँ पे रिस्क अनलिमिटेड ही होती है, तो राइटिंग करना चाहिए, बट मैंने जैसे बोला कि हेज्ड होना चाहिए पोजीशन, बिकॉज यदि राइटिंग आपकी ओपन है तो देन यू आर जस्ट कीपिंग इट ओपन एंड देन आई मीन कुछ भी वाइल्ड मूवमेंट आ जाता है तो द लॉस इज वेरी ह्यूज। तो कभी भी नेकेड पोजीशन ऐसी ऑप्शन के अंदर रखना नॉट रिकमेंडेड फॉर फ्रेशर्स। और प्रोफेशनल्स भी जब करते हैं तो वो हेज करके ही काम करते हैं उसके अंदर। तो वी डोंट रेकमेंड आउट ऑफ द मनी को आप प्लेन नेकेड लॉन्ग्स नेकेड शॉर्ट उसके अंदर ओपन रखें। Dear participants, just to inform everyone, we'll keep this discussion open for another 5 minutes or so, where they all can drop their questions. If there are any questions are unanswered, kindly leave your email ID or phone number, and we'll make sure that from our research team and from our sales teams, we will get back to you. Before we answer any more questions, I would like to request all the participants to like, share our social pages. That is the best way to get in touch with us, and we are continuously posting a lot of valuable content. We don't post any marketing content. We only post things that we believe our investors can get value out of. So please do interact with our social pages. It'll allow us to get news to you quicker.
Are there any more questions that have been pending? Yeah, I'm just checking. Next session date would be intimated to you because, as I said, it is not going to be only on a particular analytical method. We have, 3-4 topics on which we are going to conduct webinar on. So you'll be notified. Just be updated through our social media channels. You'll get notified from there. How to find that short built up and long built up in particular stocks. Yes. So this has more to do with the positioning of price, open interest, and volume. So as I already told, this we are going to conduct in the next session. So stay tuned for understanding this concept. And we have some setup apart from even in case of options also. Generally, people look onto the positioning of long built up or short built up in case of futures. So we have some particular tools which we think are very much workable for options also, long built up, short built up. So stay tuned for that and do attend the next webinar. As open interest affect option price. No. I mean, open interest generally helps you to, while selecting the strike price in case of options, as well as the positioning of, while determining the view of a particular stock based on option analysis, open interest comes into, it has importance, but it doesn't affect in general the option price. So someone is asking, trading in options, which is the underlying rate spot price or future price? So it's underlying rate spot price. क्योंकि जब आपका ऑप्शंस एक्सपायर होता है वो स्पॉट प्राइस के हिसाब से होता है एक्सपायर. कैलकुलेशन इसका स्पॉट प्राइस के बेसिस पे होता है. How to see recording again? I know, I guess we are done. Anything else left from your end or Yuvraj sir? I think the questions, whoever that are pending, as Ansrat sir and we mentioned that we will follow up on email on individual basis. Alternatively, you can also look at our blog pages where we've mentioned where we mention all the answers to the same. From a recording point of view, we do not idly put up the recording online or share it to anyone in particular. So that is something that we might not be able to do for our audiences. One query I would like to answer. Someone has requested for webinar for intraday trading for cash and futures. So yes, as I said, not only options, we are going to cover technicals and fundamentals also. So in one of the technical webinar, we are definitely going to discuss about the intraday setups, which we think right for intraday trading. And then maybe some in that seminar only or any other, we are going to even cover the setups which are looking good for positional trading also. So yes, definitely one webinar is planned for intraday trading. I think there are no further questions. Thank you everyone for attending this webinar, and we hope that you have gained enough knowledge in options trading. Going forward, we will notify everyone via email and SMS about our upcoming webinars. Thank you very much. Thank you everyone Thank for you. attending the webinar.